Welcome back from Mentor English, Professor M. Raza. Today we are gonna solve the page number 48 of PTB English class 10th, page number 48. So for grade 10th, this page was asked by some teachers. So it is both effective for the students and for the teachers too. So let's get started, and at the end, I will pass the Urdu review of this particular lecture. At page 48, question part D, identify gerund and infinitive in the following sentences. Gerund mean the word with ing stating or ing adding, and infinitive a verb or a word with the two. So we are going to underline it. So number one, minor cuts and scrapes usually stop bleeding on their own. Bleeding is a gerund. uh, Point number two, or sentence number two, to clean the area around the wound, use soap and a washcloth. So to clean is a infinitive. Point number three, don't keep checking to see. Checking is gerund, and if the bleeding has stopped, bleeding is also being used as a gerund, and to see is used as infinitive. So underline all these states and all these pointings. Point number four, so try to keep infinitive out of the actual wound. Point number five, if a rash appears, stop using the ointment. Using is working here as a gerund. Point number six, if dirt or debris remains in the wound after washing is a gerund. Use tweezers cleaned with alcohol to remove. To remove is a infinitive, the particles. Then part E of the question, change the following sentences into passive voice. Subject in the passive sentence may be skipped. This is a pointer technique is given to you particularly to understand it. So the first active sentence is, you must put out all smoking material. So the passive will be, all smoking materials must be put out. Sentence 2, you must fasten the seat belt. The passive will be, the seat belt must be fastened. The seat belt must be fastened. Point number 3, they will demonstrate safety precautions. So the passive will be, safety precautions will be demonstrated. Safety precautions will be demonstrated. Point number 4, you should read the safety instructions, or sentence number 4. Now we are going to convert it to passive voice. The safety instructions, T is capital. We are using from here the sentence is going to start, so the T of the will be capital. The safety instructions should be read, because it's third form here in passive. Sentence fifth, sentence 5, if you use to read 1 2 3 4, then it will be 5, and if you are using first, second, third, fourth, then it will be fifth. You can store small packages
in the overhead compartment. So the passive will be small packages can be stored. Small packages, small packages can be stored in the overhead compartment. Ask the canteen boy, send me my coffee. Oral communication skills. Useful expressions to make an apology. Apology mean, somewhere you need to express your apology, or apology situation or statement, or expressions. So I'm sorry for that. I'm sorry for that. I'm sorry for that. I hope you aren't too upset or too offended about your home task or home task. I must apologize. I must have to apologize. I feel so mean about that, and I feel not so mean about that. We both use the different way of it. For the teachers, grammar E tell students sometimes the subject in the passive sentence may be skipped if it is not important or unknown. If it is not important and unknown. So let's do it as Urdu version. Muazzaz Asatज़ah Ikram, Muazzaz Tulaba व Talibat, dear watchers, dear viewers, सफ़ा नंबर 48 इंग्लिश ग्रेड 10th सवाल का हिस्सा डी या जुज डी है. आइडेंटिफाई शनाख्त कीजिए जेरेंड जेरेंड की एंड इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव की इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस दिए गए या दर्ज झैल सेंटेंसेस में से. पहला सेंटेंस है उसके अंदर ब्लीडिंग जो है वो जेरेंड है. दूसरा सेंटेंस उसमें टू क्लीन जो है वो इन्फिनेटिव है. मैं साथ साथ इसका तर्जुमा भी करता जाता हूँ. माइनर कट्स, छोटे जो कट्स होते हैं, एंड स्क्रैप्स और जो खराशें होती हैं, यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग, उनकी ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है ऑन देयर ओन, खुद ब खुद. टू क्लीन साफ करना, द एरिया अराउंड द वाउंड, ज़ख़म के गिर्द का जो है वो एरिया है. यूज़ सोप एंड अ वाश क्लॉथ, सोप इस्तेमाल करना चाहिए और साफ जो कपड़ा होता है वो यानी साफ़ी जैसे कहते हैं नए वाली, वो इस्तेमाल करनी चाहिए. डोंट कीप चेकिंग टू सी. अब चेकिंग इसके अंदर जो है वो जेरेंड है. टू सी इसके अंदर इन्फिनेटिव है. इफ़ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड, और ब्लीडिंग इसके अंदर जो है वो फिर जेरेंड है. ठीक है, अब पहले तर्जुमा कर लें. और जेरेंड और हमने उसको जो है ना वो सॉर्ट आउट कर लिया, ढूंढ लिया, अंडरलाइन भी कर लिया. डोंट कीप चेकिंग टू सी, डोंट कीप चेकिंग, मत रोकिए चेकिंग, तलाशना, देखना, टू सी इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड, के जो है वो जो खून है वो रुका है यानी बार बार आप जब पट्टी उठा के उसको देखेंगे, इसका मुराद ये तो डेफिनेटली ज़ख़म फिर कच्चा हो जाएगा. तो ये जो है वो करना ठीक नहीं है. सेंटेंस 4 है जी. सो ट्राई टू कीप, टू कीप जो है इसके अंदर इन्फिनेटिव है, इट आउट ऑफ द एक्चुअल वाउंड. सो ट्राई टू कीप इट, कोशिश कीजिए रखने की, इट आउट ऑफ द एक्चुअल वाउंड, असल जो है वो ज़ख़म से दूर. कोई भी जो है ना वो मनाही चीज़ हो सकती है, जो चीज़ ज़ख़म को नुकसान पहुंचा सके वो हो सकती है. पांचवा जी, इफ़ अ रैश अपीयर्स, अगर उसके ऊपर जो है वो रैश यानी कि जल्द की रंगत जो है वो ख़राब हो जाती है, वो आ जाती हैं, या कोई खराश उसके ऊपर जो है वो आ जाती है, खराश से मिलती जुलती. वैसे स्क्रैप्स जो होते हैं वो पर्टिकुलरली खराश को जो है वो ज़ाहिर करते हैं. स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, तो रोक दीजिए. यूजिंग जो है वो यहाँ पर क्या है, जेरेंड है. द ऑइंटमेंट जो है यानी बाम वगैरह जो भी आप लगा रहे हैं उसको रोक दीजिए. अगर उसकी वजह से जो है वो जगह सुर्ख हो गई है, या उसके ऊपर जो है वो कोई रैश बन गया है, या उसके ऊपर कोई जो है वो आपको सुर्खी माइल कोई चीज़ जो है ना बनी हुई नज़र आ रही है. तो छठा सेंटेंस है जी, इफ़ डर्ट और डेब्रीज, डर्ट भी गंदगी को कहते हैं, डेब्री भी गंदगी को कहते हैं, रिमेन्स बाकी रहती है इन द वाउंड, ज़ख़म के अंदर, आफ्टर वाशिंग, उसे धोने के बाद. वाशिंग जो है ये जेरेंड है. यूज़ ट्वीज़र्स, तो ट्वीज़र्स इस्तेमाल कीजिए. क्लीन्ड विद एल्कोहल,
और एल्कोहल के साथ उसको जो है वो साफ़ करके टू रिमूव द पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्स को या उस गंदगी को दूर करने के लिए। टू रिमूव जो है वो जेरेंड हो जाएगा, सॉरी टू रिमूव जो है वो इन्फिनेटिव हो जाएगा और वॉशिंग जो है वो जेरेंड हो जाएगा, ये याद रखिएगा। उसके बाद है जी ई पार्ट, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू अ पैसिव वॉइस। ये तब्दील कर दीजिए, ये मैंने पहले जो है ना वो किए हुए, आप वहाँ से भी जो है ना वो सुन सकते हैं। दोबारा से एक दफ़ा बता देता हूँ। यू मस्ट पुट आउट ऑल स्मोकिंग मटेरियल, आपको तमाम स्मोकिंग मटेरियल्स जो है ना बाहर निकाल देने चाहिए। अच्छा, ऑल स्मोकिंग मटेरियल्स मस्ट बी पुट आउट, मस्ट बी पुट आउट, ये जो है वो इसका पैसिव हो जाएगा। यू मस्ट फेस्टन द सीट बेल्ट है, तो इसको जो है वो द सीट बेल्ट मस्ट बी फेस्टन, ये हो जाएगा। और ये मैंने जो है ना वो नया जुमला लिखने की बजाय जहाँ से जुमला वो हो रहा था मैंने अंडरलाइन उसको इसलिए किया है कि ये हिस्सा हम बाद में लेकर जाएंगे, ठीक है, ताकि उसका जो है ना पैसे मुकम्मल हो सके। दे विल डेमोन्स्ट्रेट सेफ्टी प्रिकॉशंस, तो सेफ्टी प्रिकॉशंस पहले आ जाएगा और पहले आने की वजह से चूंकि सेफ्टी का एस जो है वो कैपिटल हो जाएगा, यही स्कीम ऊपर भी बताई गई है, दी का टी कैपिटल। सेफ्टी प्रिकॉशंस विल बी डेमोन्स्ट्रेटेड जो है वो ये हो जाएगा इसका पैसिव। और फोर्थ सेंटेंस है, चौथा चाहरम जो फ़िक्रा या जुमला है, यू शुड रीड द सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, तो द सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस शुड बी रेड, थर्ड जो है ना वो फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद है जी पांचवा जुमला या फ़िक्रा है, यू कैन स्टोर स्मॉल पैकेजेस इन द ओवरहेड कंपार्टमेंट, आपको ऊपरी जो कंपार्टमेंट है, ये जो हिस्सा है जहाज़ का, उसके अंदर जो है वो छोटे जितना भी सामान है, पैकेजेस हैं, वो भेज देने चाहिए। तो चलिए इसका पैसिव करते हैं। स्मॉल पैकेजेस कैन बी स्टोर्ड इन द ओवरहेड कंपार्टमेंट, ठीक है जी। तो ये आपके जो है ना वो पैसिव वॉइस हो गए। और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस अलग से जो है वो तफसीली लेक्चर्स जो है वो आप पॉडकास्ट के अंदर चले जाएं तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। और टीचर्स ट्रेनिंग सेशन बाई प्रोफेसर एम ए रज़ा के अंदर जो है वो चले जाएं तो और भी आपको ढेर सारी चीज़ें जो है ना वहाँ पे अपनी टीचिंग जो है वो मेथोडोलॉजी को, टीचिंग पैडागोजी को, टीचिंग टेक्निक्स को, टीचिंग इंट्रिकेसीज को जो है वो बेहतर करने के लिए आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स यानी ज़ुबानी ज़ुबान दानी या ज़ुबान बयानी या बयानी जो है वो महारतें, स्किल्स महारतें और कम्युनिकेशन राब्ते का ज़रिया बराए राब्ता या जो है ना वो बुनियादी तौर पे एग्जैक्ट बनेगा। ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स ज़ुबानी जो है वो बोलने की महारतें। यूज़फुल एक्सप्रेशंस टू मेक एन अपोलॉजी, जब आपने अपोलॉजी माजरत, जब आपने माजरत करनी हो तो इस तरह की एक्सप्रेशंस आपको यूज़ करने चाहिए। आई एम सॉरी, मैं जो है ना वो माजरत खा हूँ। आई एम सॉरी दैट आई पुट दिस लेक्चर सो लेट एज इट वाज रिक्वेस्टेड 5 days अगो। मैं माजरत खा हूँ जी कि ये लेक्चर जो है वो बहुत लेट जो है वो अपलोड हुआ, क्योंकि ये मुझसे जो है वो काफ़ी दिन पहले मांगा गया था। तो ये जो मैंने आपसे अपॉलॉजी की है उसके लिए। फिर है आई होप यू aren't टू अपसेट अबाउट होम टास्क, या आई होप यू aren't टू offended about home task. I must apologize this. I must have to apologize or apologize on this particular occasion. I feel so mean about you were not picking my call. ठीक है जी। तो फॉर द टीचर्स टीचिंग पॉइंट है जी इस पे मौलिमाना नुक्ता ग्रामर ई जो है, टेल स्टूडेंट्स, बच्चों को बताइए, समटाइम्स कभी कभार सब्जेक्ट इन द पैसिव सेंटेंस में बी स्किप्ड, कि कभी कभार जो है वो कभी कभार भी और अक्सर व बेशतर भी जो है ना, चूँकि मैं यहाँ पे एक छोटी सी बहस ज़रूर समझाना चाहता हूँ कि जब देखें मफूल है, मफूल को आप फ़ाइल की जगह पर लाएं भी तो जो है वो फ़ाइल तो नहीं बन जाएगा ना। मफूल तो जिस पर काम होता है तो फ़ाइल काम करने वाला होता है। तो यहाँ पे फिर हम स्लाइड चेंज करते हैं, एजेंट डिक्लेयर कर देते हैं कि मफूल यहाँ पर एक एजेंट है और फ़ाइल के एजेंट के तौर पे जो है वो यहाँ पे काम कर रहा है। तो एजेंट ऑफ द सब्जेक्ट, उससे जो है ना वो हमारा वो फ़ाइल भी बच जाता है, फ़ाइल की इज़्ज़त भी बच जाती है और मफूल की जो है वो इज़्ज़त या डिग्री के अंदर भी इजाफा हो जाता है। ये ख़ास तौर पे जो है ना वो इस पेज के ऊपर जो है वो मौलिमाना नुक्ता है, बराए असातिज़ा है। और यहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं दी हुई, तो ये मुकम्मल तौर पर जो है वो हल कर दिया है। ये चैनल हमारा मेंटोर इंग्लिश अंग्रेज़ी की खिदमत के लिए, इंग्लिश सर्विसेज के लिए है। इसके अलावा हमारा उर्दू चैनल
उर्दू की खिदमत के लिए मुर्शद उर्दू प्रोफेसर एम ए रज़ा है। और इसी तरह मंतक, फ़लसफ़ा और क्लासिकल इस्लामिक साइंसेज़ के लिए हमारा चैनल जामे दारुल शेखुल इस्लाम है। सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन का ऑल पर प्रेस करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए मेरे साथ मिलकर कहिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए, तालीम और तरबियत के लिए एक कदम और। लेट मी गो नाउ एंड से विद मी, डू समथिंग मोर फॉर ह्यूमैनिटी, डू समथिंग मोर फॉर नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। हैव अ गुड डे। Yes, send the coffee, put the coffee on my table. Thank you. Okay.